Welcome you all, class 3rd in my science class. Today we will study the second part of lesson 5, that is plants in the surrounding. In the first part of this video, we were studied about the functions of root, stem and the leaves. Now see the next part. This is an activity by which you can create your herbarium. Actually, a herbarium is a collection of dried and pressed plants. हार्बेरियम जो है वो सूखी हुई और बहुत ही प्रेस्ड की हुई प्लांट का कलेक्शन होती है। इसको आप आसानी से अपने घर में या अपने स्कूल से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट्स प्रिपरेशन। The first step for the preparation of herbarium is to collect the different type of leaves from your school or home garden. सबसे पहले आप different type के leaves को collect करिए and then place them between the newspaper sheets and put a heavy weight on the newspaper. उसके बाद उसे आप न्यूज़पेपर के बीच में रख दीजिए और उसके ऊपर कोई हैवी चीज रख दीजिए ताकि वो दबे। 1 से 3 वीक्स तक आप इसे completely ड्राई कीजिए। Then you will take out the leaves and you will see that it is totally dried and pressed. Now you can carefully and gently paste these leaves in your scrapbook. And after pasting these different type of leaves, you can write the name of the plant whose leaves you have pasted. This is the method of preparing herbarium. Today we will study about the flowers as it is also the main part of the shoot. The flower is the most beautiful and attractive part of the plant. Definitely बच्चों, plant का सबसे beautiful और attractive part flower ही होता है। Why it is beautiful? Because इसकी जो petals होती हैं वो बहुत ही प्यारे कलर्स की होती हैं and have a pleasant smell और maximum flowers की smell बहुत अच्छी होती है। To attract butterflies, इसी रीजन से इनकी तरफ butterflies भी attract होती हैं और bees भी। Flowers help the plants in reproduction by producing fruits and seed. Do you know children कि अगर प्लांट में फ्लावर ना हो तो प्लांट में फ्रूट और सीड नहीं बनते। सो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो हम खाते हैं सच एज cauliflower and broccoli. Here we will study about a very interesting fact. It is about a flower that is Rafflesia. Do you know children? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है उसका नाम रेफ्लेसिया है और ये इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। It can grow to be 3 feet across and weight up to 15 pounds. इस फ्लावर की जो लंबाई होती है वो करीब 3 फीट के आसपास होती है और इसकी वेट 15 पाउंड्स तक होती है। It is also a very bad smelling flower. Rafflesia emits a repulsive smell. इसकी स्मेल rotting meat की तरह होती है। This smell attracts insect. लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ये स्मेल अच्छी लगती है और उसकी वजह से इस प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता है और इसका भी फ्रूट और सीड बनता है। Now we will study about the fruits and seeds which are also the part of the shoot. Fruits develop from flowers. Fruit जो है वो फ्लावर से बनता है। जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर के बाद उसी फ्लावर से फ्रूट बनता है। We eat fruits of many plants like mango, papaya, apple, etc. Most fruits have seeds in them. आप जितने fruits खाते हो, if you will think, then you will come to know कि maximum fruits के अंदर seeds होती है। Some fruits like mango just have one seed. मैंगो के अंदर केवल एक सीड होती है। Some like apple and orange have a few seed. और एप्पल और ऑरेंज के अंदर कुछ सीड्स होती हैं, मीन्स more than one seed they have. While some other fruits like papaya and guava have many seeds in them. पपाया और गुआवा के अंदर बहुत सारी सीड्स होती है। Now we will study about the structure of a seed. Do you know that most plants grow from the seeds? Seeds are of different shapes, sizes and colors. सारे सीड एक जैसे नहीं होते, सबके शेप, साइज और कलर्स डिफरेंट होते हैं। Some seeds are very small. कुछ बीज बहुत छोटे होते हैं जैसे राइस एंड व्हीट। आपने गेहूं और चावल देखा है ना? I think you all are having it at your home. वो दोनों ही सीड हैं।
while some are quite big like mango seed, और मैंगो का भी सीड आपने देखा है जिसे आम की गुठली भी कहते हैं, उसकी साइज राइस और व्हीट के कंपेयर में काफी बड़ी होती है। We eat the seeds of some plants like grains, peas, beans and gram. So now see that what is the internal structure of a seed. See the picture. The outer covering of seed is called the seed coat. जब हम किसी शीट को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर आता है जैसा कि इस पिक्चर में बना हुआ है। सबसे ऊपर की कवरिंग को शीट कोट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द शीट। द शीट हैज अ बेबी प्लांट लाइक एम्ब्रियो इनसाइड इट। आप देखोगे तो इसी शीट के अंदर एम्ब्रियो एक वर्ड लिखा हुआ है। एम्ब्रियो प्लांट का न्यू बेबी होता है। जब हम किसी भी शीट को सो करते हैं, बोते हैं उसको, तो यही एम्ब्रियो बड़ा होकर प्लांट के फॉर्म में बीज से और सॉइल से बाहर आता है। It also has small seed leaves or cotyledons that contain food for the embryo. आप देखो इस पिक्चर में एक जगह लिखा हुआ है कॉटिलिडन। इस पिक्चर में दोनों ही साइड में एक एक कॉटिलिडन है, लेकिन सारे शीट में 2 कॉटिलिडन नहीं होते, बट एटलीस्ट एक जरूर होता है। इस कॉटिलिडन का वर्क है कि वो एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो मीन्स न्यू बेबी, तो कॉटिलिडन फूड देता है एम्ब्रियो को, जिससे एम्ब्रियो बड़ा होकर न्यू प्लांट डेवलप करता है। Now we will study that how many types of sheets are there. First is the dicot sheets and second is the monocot sheets. So dicot means जिसमें 2 cotyledon हो। These sheets have 2 seed leaves और cotyledon. ये ऐसे शीट हैं कि अगर आप इसे ब्रेक करके देखेंगे, यानी इसकी शीट कोट को निकाल के देखेंगे, तो इनके अंदर इजीली 2 कॉटिलिडन दिखाई देंगे। कॉटिलिडन का ही दूसरा नाम शीट लीफ भी है, जैसे पीज, बीन्स, ग्राम शीट etc। सेकेंड मोनोकॉट शीट। मोनोकॉट शीट्स ऐसे शीट्स हैं जिसमें 2 कॉटिलिडन्स नहीं होते। दे हैव ओनली 1 सीड लीफ और 1 कॉटिलिडन, जैसे मेज, राइस, ग्रासेस etc। आपने गेहूं और चावल देखा है ना, दे कैन नॉट ब्रेक इन इक्वल 2 पार्ट्स because they are having only 1 cotyledon or 1 seed leaf. Now again there is an activity to study. Take some gram or bean sheets. उनको पूरी रात के लिए सोक करके रखिए, and you have to observe that what will happen with the sheet. In the morning it will be swollen. सुबह आप देखोगे कि शीट फूल के बड़ी हो गई है। Now carefully remove the sheet coat and open the sheets. अब धीरे से आप शीट कोट को निकालिए और अंदर के शीट को ऑब्जर्व करिए। Observe the structure of the sheet. Note down your observation in your notebook and draw the structures of the sheet. Now we will study about the germination of sheet. The process by which a sheet grows into a new plant is called the germination. वो प्रोसेस जिससे कि एक शीट ग्रो करके न्यू प्लांट बनाती है उसे जर्मिनेशन कहते हैं, मीन्स अंकुरण। When the sheets get sufficient water, light, air and warmth, the embryo grows into a tiny plant. सबसे पहली पिक्चर में एक बीन का शीट मिट्टी के अंदर है, उसका एम्ब्रियो, छोटा सा एम्ब्रियो उसमें से ग्रीन कलर का बाहर आया, फिर ये छोटा सा न्यू प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर गया। It means the teeny plant that comes out from the embryo keeps growing till it becomes a fully grown plant. अच्छा, इस टीनी प्लांट को सीडलिंग भी कहते हैं। ये टीनी प्लांट तब तक ग्रो करता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। All seeds do not germinate. सारी शीट जर्मिनेट नहीं करती, because some sheets get destroyed by rain or wind. कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जो रेन की वजह से या विंड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Some get eaten up by the birds, animals और insects. बहुत सारे इंसेक्ट्स को बर्ड्स खा जाती हैं, एनिमल्स खा जाते हैं और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट माने कीड़े खा जाते हैं। While some sheets do not get the right conditions to germinate. और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम सीड को सॉइल में सो करते हैं उसके बाद भी वो ग्रो नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शीट को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो उसको नहीं मिलती। Now we will see about the next activity.
that is about the conditions needed for seed to germinate. So there are three main conditions which are needed by the seed to germinate. The first is the soil. अगर seed को proper soil मिलता है then it can grows. इसी तरीके से seed को grow करने के लिए sunlight की भी need होती है. जब sunlight soil पे पड़ती है तो उसकी heat automatic seed को मिलती है. And next is the water. इसीलिए जब हम किसी भी शीट को बोते हैं तो उसके बाद सॉइल में वाटरिंग करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स कि हम पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. डेफिनेटली चिल्ड्रन, प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट बिकॉज दे सप्लाई ऑक्सीजन. क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं. Provide us vegetables and fruits. They also give oil, spices and medicines. इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स की शीट्स से हमें ऑयल मिलता है, बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं और मेडिसिन मिलते हैं. Animals are also directly और indirectly dependent on the plant. इसी तरीके से एनिमल भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं. Now you will think कि what is the meaning of directly or indirect? Here directly word is used for the animal in case when the animal eats directly the plant. बहुत सारे animal plant को खाते हैं, means herbivorous animal plant को खाते हैं. And if we will talk about the indirectly dependent, it means जो एनिमल कार्निवोरस होते हैं वो सीधे प्लांट को तो नहीं खाते, लेकिन कार्निवोरस एनिमल जिन एनिमल्स को खाते हैं वो तो प्लांट खाते हैं. इट मीन्स प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन टेक केयर ऑफ प्लांट इन आवर गार्डन्स एंड होम्स इन द फॉलोइंग वेज. द फर्स्ट वन इज वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. हमें प्लांट को रेगुलरली उनकी जरूरत के हिसाब से वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. सम प्लांट्स नीड मोर वाटर देन द अदर्स. कुछ प्लांट को ज्यादा वाटर चाहिए होता है और कुछ को कम चाहिए होता है. दे शुड बी एक्सपोज्ड टू सफिशिएंट सनलाइट एंड एयर. हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्लांट को जितना सनलाइट और एयर चाहिए वो उसको मिले. सॉइल शुड बी रेगुलरली टर्न्ड ओवर. लिसन चिल्ड्रन, टाइम टू टाइम सॉइल को टर्न ओवर करना चाहिए, मीन्स गुड़ाई करनी चाहिए. तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो जाती है जिससे सॉइल वाटर भी अपने अंदर होल्ड करता है और इस स्पेस में ऑक्सीजन भी भर जाती है जिससे रूट को प्रॉपरली मिलती है. ऑर्गेनिक मैन्यूर शुड बी एडेड रेगुलरली टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. हम जिस भी सॉइल में प्लांट को लगाते हैं तो उस प्लांट में टाइम टू टाइम खाद भी देना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करने चाहिए. मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं जो प्लांट को देने से प्लांट तेजी से बढ़ते हैं लेकिन वो हार्मफुल होते हैं. बल्कि घर का बना हुआ खाद देना चाहिए. इफ प्लांट्स आर अटैक्ड बाय द इंसेक्ट, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स कैन बी स्प्रेड. चिल्ड्रन, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो उन इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए मार्केट में मेडिसिन मिलती है जिसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कहते हैं. तो ये दवाओं को प्लांट पर छिड़क देना चाहिए लेकिन इनकी अमाउंट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को स्प्रे करने से प्लांट्स के लिए ये हार्मफुल होते हैं और उन प्लांट्स के प्रोडक्ट को जब हम खाते हैं तो हमारी भी हेल्थ खराब होती है. सो चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट द लेसन 5. थैंक यू.